Hello again. We are going to solve some examples related to what we have done till now. So our word is history. This is our word. How many letters we have? We have 7 letters. Oh, again, रेनबो में भी 7 था, हिस्ट्री में भी 7 है. इसमें वोवल्स की बात करेंगे तो आई हैव आई एंड ओ. कॉन्सोनेंट्स आर एच, एस, टी, आर एंड वाई. So these are consonants and these are vowels. So how many 7-letter words can be made? 7 factorial. How many 4-letter words in total can be made? Without repetition, that's it. So in how many ways, how many total 4-letter words can be formed? Box बना के तो हम कर सकते हैं, but now what we have 7P4 सिंपल. 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं, 4 आपको पिक करना है. 7P4 सॉल्व कैसे करते हैं? एनपीआर का वैल्यू कैसे निकालते हैं? वी स्टार्ट विद 7 एंड कीप ऑन रिड्यूसिंग द नंबर अप टू टोटल 4 डिजिट्स. तो 7 के बाद 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा. 4 डिजिट्स 1 2 3 एंड 4. 4 नंबर्स लिखने हैं. दैट्स इट, खत्म. दैट इज द वैल्यू ऑफ 7P4. तो 7P4 के लिए 7 से स्टार्ट करोगे और फिर कंटिन्यूएशन में 4 नंबर्स लिख लोगे. दैट इज 7P4. नेक्स्ट इज सेकेंड 4-letter word with consonants only. How many 4-letter words can be made that contains only the consonants, nothing else? How many consonants do we have? We have actually 1 2 3 4 5 consonants we have. और 5 consonants अगर है और हमें 4-letter का word बनाना है तो that will be 5P4. 5P4 का मतलब 5 into 4 into 3 into 2. 5 से स्टार्ट किया और 4 नंबर्स लिख लिए. That gives me 120. That is 840. So this is your second question. Third question है कि 4-letter word starting and ending with consonant. अब are we going to use NPR? No, we are not. What we are going to do is same अपना पुराना standard method. तो consonants 5 हैं तो this will be 5 and 4 starting and ending with consonant and then total 7 में से 2 चले गए तो बचा अपने पास 5 and 4. That gives me 400. तो 400 4-letter words will be there which will start and end with a consonant. So ध्यान से देखते रहेगा. क्वेश्चन क्या है? How many of them starts with consonant? Consonant से start करना है, 4-letter word है तो consonants I have 5. So that condition is fulfilled and now we have the freedom and the freedom gives us 6 letters. So that will be 6 into 5 into 4. That is how we are going to find starting with a consonant. And then how many of them contain let's say T. T होना चाहिए. How many words can we make 4-letter word using letters of the word history containing T? So बाद में जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, आफ्टर डूइंग कॉम्बिनेशन इट विल बिकम वेरी इजी. बट राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लेट मी फाइंड ऑल and minus
no t. Dot number of t, this is no t. So we write all the words minus we subtract those numbers which have no t. तो जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा? दैट विल बी वेट टी. तो टोटल होंगे 7p4. टोटल विल बी 7p4. 7 लेटर्स में से 4 लेटर वर्ड बनाएंगे तो देयर विल बी 7p4. बट समथिंग दैट कंटेन्स नो टी, टी नहीं होना चाहिए. चलो टी हटा दिया, टी हटा दिया. सो हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन वी मेक नाउ? 6p4. अपने पास टोटल 6 लेटर्स ही बचे हैं तो दैट विल गिव यू 6p4. Sixth question. Contain both vowels. How many of those words, 4-letter word from letters of the word history, contain both the vowels? ये दोनों यूज करने. ऐसे कितने होंगे? तो एक काम करते हैं, पोज करो और सॉल्व करने का ट्राई करो. In these kind of questions, basically conditional, you have to plan. Planning should be very important. Planning should be very accurate, meticulously done. उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो बहुत आसान हो जाएगा. So planning, what I am going to do is कि पहले मैं वॉवल आई और ओ को तो सेट कर लेता हूँ कि चलो हमने कहीं पे आई रख दिया. आई के लिए आई हैव 4 ways एंड ओ के लिए आई हैव 3 places. Now what I have is I have 2 places and 5 consonant. तो फर्स्ट प्लेस के लिए थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस. थर्ड प्लेस के लिए आई हैव 5 ऑप्शन और फोर्थ प्लेस के लिए आई हैव 4 ऑप्शन. तो दैट कम्स आउट टू बी 240. अब इसमें एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है. कभी तो हम प्लेसेस की बात करते हैं, कभी हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं. सो एवरी क्वेश्चन कंटेन 2 नंबर्स. एक एन होता है, एक आर होता है. वी हैव टू डिसाइड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एन एंड व्हाट इज आर. सो व्हाट आई से कि देयर आर 2 नंबर्स, one is option and one is compulsion. Every question will have these 2 numbers. एक option होगा और एक compulsion होगा. Option is basically N, compulsion is basically R. N distinct objects हैं, उसमें से R को ही अरेंज करना है, तो R is important for us. N तो optional है, उसमें से कोई नहीं पिक करोगे तो भी चलेगा. So in every question think of कि what is option and what is compulsion. Now when we have decided कि what is option, what is compulsion, what we are going to do? We are going to talk about option or compulsion. Definitely we are going to talk about the compulsion. ऑप्शनल तो ऑप्शन है, चलेगा, नहीं भी बात करोगे उसके बारे में तो काम हो जाएगा. जो कंपल्सरी है उसके बारे में बात करते हैं. तो जब हमने वॉवल्स ले लिए, नाउ वी हैव टू पुट दिस आई एंड ओ. फिक्स है, आई और ओ आपको रखने ही पड़ेंगे. तो आई के बारे में बात किया, फिर ओ के बारे में बात किया, आई और ओ खत्म हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 प्लेसेस एंड दीज 5. अब बोलो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कंपल्शन है, क्या ऑप्शनल है. सो दीज आर बेसिकली ऑप्शंस and these 2 places will become compulsion. So we are going to talk about the compulsion of the 3rd place and 4th place. तो 3rd place का मतलब ये नहीं कि ये वाला, ये जो इनपुट्स हैं I और O है, हो सकता है यहाँ I और यहाँ O रखा हो. But the 3rd empty place है, that is important for us. The 4th empty place है, that is important for us. पहले आई और ओ इंपॉर्टेंट थे, अभी 3rd और 4th प्लेस इंपॉर्टेंट हो गए. तो 3rd प्लेस के लिए वी हैव 5 ऑप्शन एंड 4th प्लेस के लिए वी हैव 4 ऑप्शन. सो प्रायोरिटीज कीप ऑन चेंजिंग. इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि व्हाट इज ऑप्शन एंड व्हाट इज कंपल्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. वी आर गोइंग टू यूज इट सो मेनी टाइम्स. कहीं भी कंफ्यूजन हो, ऑलवेज थिंक हमें ऑप्शन क्या है, कंपल्शन क्या है. क्या है जो हमें करना ही है वो कंपल्शन. कहां से पिक करना है, क्या करना है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, दैट इज ऑप्शन.
अब ऑप्शन भी है, कंपल्शन भी है, तो बात किसके बारे में करेंगे? सो वी आर ऑलवेज गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपल्शन। ऑप्शन तो चलता है, आते हैं जाते। लाइक इफ आई आस्क यू कि वी हैव योर फादर गेव यू लाइक 5 लेटर्स, ABCD वाला लेटर नहीं है, पोस्ट करने वाला लेटर। ईमेल आप बोलते हैं, उसमें से ई हटा देंगे तो मेल्स है बेसिकली। आपने शायद देखा भी नहीं होगा, यूज नहीं किया होगा। पहले जमाने में पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे, अभी भी हुआ करते हैं। तो अ गुड एक्सपीरियंस इफ यू हैव नॉट डन दिस, write a letter, post in some post box. I don't know where you'll find them, but you may go to a post office and do that. And you will say कि there are, suppose I have 3 letter boxes and your father gave you these 5 letters कि जाओ ये उसमें पोस्ट करके आना है. So in how many ways this job can be completed? In how many ways you can complete your task? आप आपका टास्क कितने तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं? तो we have 3 post office, post box actually, post box 1, 2 and 3, and you have 5 letters. Let me say letter 1, letter 2, letter 3, letter 4, letter 5. Now decide कि इसमें से ऑप्शन क्या है और कंपल्शन क्या है. So ऑप्शन में if you see, decide क्या है ऑप्शन, क्या है कंपल्शन. Think of it. You have 10 seconds. Done. So your 10 seconds are gone. Now I am going to tell you, letters are compulsion. लेटर आपको पोस्ट करके ही आना है. लेटर बॉक्सेज आर ऑप्शनल, कि आपको 5 लेटर पोस्ट करना है, लेकिन कौन से लेटर बॉक्स में, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. अगर आपने सारे लेटर फर्स्ट लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिए, दैट्स ओके, योर टास्क इज कंप्लीटेड. सेकेंड लेटर बॉक्स विल नॉट से कि अरे मेरे पास क्यों नहीं आए. थर्ड विल नॉट से ओ आई एम ऑल एम्प्टी, व्हाई डिडंट यू कम टू मी. बट इफ यू डोंट पोस्ट ऑल दीज 5, then the task is not completed. Your parents, your guardian are going to say कि you did not complete your job, you should actually finish your job. So the options are letter boxes, जबकि compulsions are letters. So I'm not going to talk about the letter boxes, I'm going to talk about the letters. So in how many ways you can post the first letter? The first letter can be posted in any 3 of these, that is 3 ways. Second letter can be posted in 2 ways. Why? 3 ways. अगर इसमें आपने फर्स्ट लेटर पोस्ट किया है तो सेकंड भी वहां पोस्ट कर सकते हैं, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. और थर्ड लेटर के लिए भी 3 केसेस हैं, फोर्थ के लिए भी 3 केसेस हैं, और फिफ्थ के लिए भी 3 केसेस. सबके लिए 3 केसेस है. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 15. नहीं होगा, रॉन्ग होगा, बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड दैट कम्स आउट टू बी 243. In one video I think that's okay, whatever. So this is 3 power 5, that is 243. 243 different ways of posting the 5 letters to 3 letter boxes. Looks too much, but actually this is right. So answer is what? So the answer is 3 raised to the power 5. अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो ऑप्शंस में एक 3 पावर 5 होगा, एक 5 पावर 3 होगा, एक 5p3 होगा, और एक नन ऑफ दीज होगा. तो एक चीज तो क्लियर होती है आपको मोस्टली कि 3 पावर 5 होगा या 5 पावर 3 होगा. तो यू आर ऑलवेज मोस्टली कंफ्यूज्ड अबाउट दीज टू, कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा. सो ऑलवेज थिंक लाइक दिस कि इन दीज काइंड ऑफ केसेस आंसर इज ऑलवेज ऑप्शन रेज्ड टू द पावर कंपल्शन. अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, but still if you are confused you have to decide by option power compulsion. 3 optional थे, 5 compulsion है, तो आंसर will be 3 power 5 not 5 power 3. तो जब भी इस तरह का कंफ्यूजन हो you can think कि सर ऑप्शन क्या है और कंपल्शन क्या है. अगर एक लेटर छोड़ देंगे तो चलेगा ना,
एक लेटर बॉक्स छोड़ देंगे चलेगा, यस। तो आउट ऑफ दीज 243 वेज व्हाट इज द प्रैक्टिकल नंबर ऑफ वेज, इसमें से प्रैक्टिकल नंबर ऑफ वे क्या है? प्रैक्टिकली देयर इज ओनली वन वे। क्या आप निकलने वाले हैं, जो फर्स्ट लेटर बॉक्स मिल रहा है वहां पोस्ट करके और घर जाने वाले। यू आर नॉट गोइंग टू से चलो एक इसमें डाल दिया, एक चलो दूसरे वाले लेटर बॉक्स में भी चलते हैं नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा, चलो तीसरे वाले में भी चलते हैं नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज जो आपके क्लोजेस्ट होगा वहां आप पोस्ट करके आने वाले। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू स्टे अवे फ्रॉम होम फॉर सम टाइम कि चलो घर से बाहर निकलने का मौका मिला, सम ऑफ यू में से कि बहुत परेशान हो गए, चलो घूम के आता हूं, देन वेयर यू विल गो? जो बहुत दूर होगा, फारेस्ट प्लेस जो सबसे दूर होगा वहां पे जाके आप पोस्ट करने वाले हैं, या फिर जहां भी आपका मन हो जाने का उसके आसपास जो एरिया होगा वहां जो पोस्ट बॉक्स होगा वहां पोस्ट करने वाले। बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पोस्ट इन अ सिंगल लेटर बॉक्स। यू आर नॉट सेइंग कि चलो एक यहाँ एक वहां एक वहां एक वहां, नोबडी इज गोइंग टू डू। तो प्रैक्टिकली you are going to do it in one way only, but there are totally 243 different ways. So that is some questions. Thank you.